हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आई थिंक आज तो मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ इज क्वाइट हैंडसम। कोई आई हैव जस्ट हैव सीन आई थिंक 15-16 स्टूडेंट्स आर देयर। जी सर। चलिए जी, ओके। एज लेडीज जेंटलमैन, यू आर नोइंग, यू आर सीइंग, विजुअलाइजिंग द टॉपिक। और अजीम, स्पेसिफिकली आपके लिए, अगर आप अपनी आउटलाइन को पार्ट ए को देखेंगे तो उसमें हम आज देखेंगे प्लान्ड स्ट्रेटजीज के हवाले से, और फिर डेलिब्रेट और एमरजेंट स्ट्रेटजीज के हवाले के साथ, और फिर बल्कि तो लिहाजा इस टॉपिक का ओवरऑल नेम बनेगा अप्रोचेस टू स्ट्रेटजीज। मीन दैट
how we design and how we prepare and make our strategies. Please, this would be technically. So, for making strategies, so this slide would make it clear. So, approaches to strategies, there are four type of strategies are there. So, that is planned strategies. So, there is a deliberate emergent strategies. So, there is the incrementalism strategies and freewheeling opportunism strategies would be there. अजीम, would you like to call it, मैंने क्या कहा है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज की बात हुई है अभी, प्लीज, अप्रोचेस की? Plan strategy. Okay. Deliberate, incrementalism, and freedom. Deliberate, emergent. Deliberate emergent strategy. Yeah. Incrementalism. Yeah. Incremental strategy. Free will opportunity strategy. Okay, thank you. Actually, approaches का मतलब है कि the way we design something is called approach. आपने किसी चीज तक पहुंचना है, जिस तरीके से आप वहां तक जाते हैं वो आपकी अप्रोच होती है. How you look, how you see, this is called approach. How do you handle some sort of things like now, you have to make strategies. तो strategies तो बनाने के number of approaches हैं, और ये आज का हमारा टॉपिक would be this one. So as we have shown our slides in this oval circle, so first of all we are going to talk about planned strategy. My dear, planned strategy जैसा कि लफ्ज से जाहिर है, planned mean कि anything which is decided one, which is systematic one, which is a formal one, and we are systematically observing all sort of steps and following all sequential steps, and then we finally decide some sort of thing. So this is what it's a formal process of setting corporate objectives and developing coherent business strategies designed to achieve those objectives with the resources available. So planned strategy is therefore the formal business planning process that is outlined in all of the business textbooks. तो my dear, आप जब भी कभी किसी चीज को systematic way में step by step, or you follow all the step, or then you are making and you are preparing your strategies. So ladies and gentlemen, such sort of strategy would be called the planned strategies. Now, just like to make it clear, just see these slides. You know, the planned strategies always follow the rational model, or rational model mean that something you do, something you perform step by step, and you are considering such the planned steps, और then आप उस चीज को बनाते हो. तो माय डियर, देखिए जरा प्लान के अंदर हमने सबसे पहले मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सेट किए. फिर हमने इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम ऑडिट करेंगे, और यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल इन्वायरमेंट को वंस वी आर गोइंग टू एनालाइज इट, तो लेडीज जेंटलमैन, यू विल बी एबल टू गेट योर SO, strength and up. I mean, like, sorry beta, प्लीज आपने जो कुछ कहा मुझे समझ नहीं आई. प्लीज कैन यू रिपीट? उन्होंने अटैच किया सर वो इसको, सर आई थिंक स्पीकर के साथ या ब्लूटूथ के साथ. अच्छा, थैंक यू. ओके, अच्छा, अब देखिए वंस इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये जरा गौर से देखिएगा. दिस इज बेसिकली कॉल्ड, इसको पोजीशन ऑडिट भी कहते हैं, इसको स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहते हैं, अप्रेजल. यहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशन का मतलब है कि नाउ आफ्टर डूइंग मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल ऑडिट, अब हमें समझ आ गई कि हमारी पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, मीन कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ करना जाना चाहिए. देन माय डियर,
you are having the strategic options mean कि अब आप ऑप्शन लेते हैं कि जी हमने क्या करना है. हेलो जी. तो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन देन हम उनमें से इवेल्युएट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं. और माय डियर फाइनली वी रिव्यू आवर कंट्रोल. Now, ladies and gentlemen, whenever you are going to make your systematic planning in this sense for making your strategies, so this would be called the planned strategies. And my dear, this is called a rational model followed for designing. लिहाजा जब भी कभी आप रैशनल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल स्टेप लेते हुए आप एक स्ट्रेटजी that would be called the planned strategies. Now my dear, सॉरी सर, ये जी जी कुछ डिस्टरबेंस है. हाँ जी, वो डिस्टरबेंस पता नहीं, आई डोंट नो ये ऑफिस की तरफ से है, ये कहाँ है, आई डोंट नो, कुछ वॉइस ही ऐसी है. तो वी आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल इफ सम डिस्टरबेंस फ्रॉम द एडमिन साइड, प्लीज होप सो कि दे आर सपोज टू कंट्रोल इट लाइक. So a rational model is followed for considering and making the strategy. अब देखिए मेरी बात सुनिएगा. आप लोगों को अगर मैं कहूँ जी एक आपने प्लान स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है तो माय डियर क्या करोगे? फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन योर मिशन, योर विजन. So you have to set your goal. You must have to conduct your environmental analysis, external, internal, strategic positions and appraisal हो जाएगी. Strategic options फिर आप उनको evaluate करके उन ऑप्शन में से और एक आप चूज करते हो और ये आपकी स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन होती है और फिर इवैल्यूएशन होती है. माय डियर, नाउ दिस वे ऑफ मेकिंग स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड अ प्लान स्ट्रैटेजी. जी, नाउ आई डू नीड. अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा मजीद कंक्लूड कर दूं एक और लाइक दिस इज दी, ये जॉनसन स्कॉल्स एंड विटिंगटन का एक मॉडल है जो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली उसी चीज़ की एक्सटेंशन है कि हम जो सिस्टमैटिक वे में प्लान रैशनल मॉडल फॉलो करते हैं. तो देखा सबसे टॉप पे क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, देन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं और देन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है. तो माय डियर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, internal analysis to identify strengths and weaknesses, stakeholder analysis to identify key objectives and to assess power and interest of different groups, or gap analysis to be done to identify the difference between desired and expected performance. So once strategic analysis have been done, now there is a strategic choices or strategies are required to close the gap, competitive strategies for each business unit, direction for growth, which market products should be invested in, whether expansion should be achieved by organic growth और इनऑर्गेनिक ग्रोथ. मैं अभी आपसे ये पहले मैं पढ़ लूँ फिर मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया है ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है. और फिर वंस स्ट्रेटजी हैव बीन मेड, तो माय डियर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी देयर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. और नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ डिटेल्ड प्लान एंड बजट्स हम करेंगे, टारगेट सेटिंग फॉर केपीआईज और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वुड बी स्टार्टेड. नाउ दोबारा अगर आप इसको देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ ये सिस्टमैटिक. अब सिस्टमैटिक में मैंने एक चीजों को बताया कि जी आप स्ट्रेटेजी एनालिसिस करते हैं स्ट्रेटेजिक, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की तरफ जाते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. बात वही थी जो मैंने यहाँ पे बात कही है. मैं अगर आपसे कहूँ कि जी आप लोग हाउ यू मेक योर डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग क्या होती है, तो नेचुरली लेडीज जेंटलमैन यू विल से कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स आर देयर which systematically is supposed to be taken. Step 1, so problem identification, criteria are decided, allocation of weights, developing alternatives, analysis of alternative, and then the best choice is taken. और इस तरीके से आपका डिसीजन हो जाता है. लेकिन ये जो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जो आपने डिसीजन किया माय डियर, दैट बेसिकली इज कॉल्ड द रैशनल डिसीजन मेकिंग. Or anything you design and you plan on the basis of systematic manner and step by step and sequential step
Ladies and gentlemen, such sort of strategies would be called the planned strategies. Please. सर इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती है? माय डियर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ये है कि कंपनीज के अंदर जब आप एक लेट्स से डेवो की एग्जांपल ले लें, उन्होंने एक प्लान बनाने जा रहे हैं और वो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजीज तक पहुंचना है और वो तमाम चीज़ों को इसी के मुताबिक अगर करते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये उनकी स्ट्रैटेजी कौन सी है? दिस इज अ प्लान वन। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि बल्कि जो क्रिटिकल यहाँ इशू है ना वो ये है कि ये जो प्लान स्ट्रेटजीज किस इन्वायरमेंट में बननी चाहिए। अब देखिए इन्वायरमेंट आपका दो किस्म का होता है माय डियर। वन इज स्टेबल इन्वायरमेंट, द अदर इज डायनामिक इन्वायरमेंट। स्टेबल इन्वायरमेंट इज सच कि वेयर द वेरिएबिलिटी इज वेरी मिनिमम वन, और यू कैन इजीली फोरकास्ट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। लेकिन जो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे आप का मतलब है वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ आप प्लान तरीके से सिस्टमेटिक चीज़ों को लेके चलना मुश्किल होता है, चूँकि आए दिन कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं। लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं आपके एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पे कि ये जो प्लान स्ट्रेटजी है दिस इज सूटेबल इन सच इन्वायरमेंट वेयर द इन्वायरमेंट इज नॉट सो वेरिएबल वन, मीन स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर होगा। अच्छा, अब दिस इज वे आप अपने एसबीयूज की एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आप अगले 5 सालों की 10 सालों की फ्यूचर फोरकास्ट करके फिर उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ये पहले आपने मिशन ऑब्जेक्टिव सेट किए, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आपने डिसाइड किया, फिर आपने स्ट्रेटजी की उसको किया चॉइसेस, उनमें से एनालिसिस करके आप देखें बगैर एनालिसिस के आप नहीं करेंगे, फिर उसकी जब स्ट्रेटजी बन गई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे। ये जो सिस्टमैटिक स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन बेसिस को इस्तेमाल करते हुए यू आर मेकिंग योर स्ट्रेटजी एंड प्लान, तो डियर स्टूडेंट दिस इज अ प्लान्ड वन। इट मीन एनी स्ट्रेटजी जो आप प्लान बनाते हो वो रैशनल मॉडल के ऊपर बेस करेगी और रैशनल मॉडल में इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जितना पीछे पढ़ा कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो जो 4 एलिमेंट्स थे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फार्मूलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग, अगर हम इसको सिक्वेंशियली फॉलो करें तो इसका मतलब वो हमारी प्लान्ड एंड रैशनल स्ट्रेटजी है, ठीक है? जी जी। लेकिन अगर हमने जितना पीछे आपने पढ़ाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी, तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी के अंदर हम इसमें से किसी क्या होगी वो स्ट्रेटजी, तो बेसिक एलिमेंट्स तो इसके अंदर होंगे, क्या हम सीक्वेंस में फॉलो नहीं करेंगे फिर उसको? देखो माय डियर, मुझे ये बताइए, अगर यकदम अगर किसी जगह पे आग लग जाए और आपने वहां फैसला करना है तो आप सिस्टमेटिक डिसीजन नहीं करते माय डियर। आप अपनी कोई बुक का रूल निकाल के स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ोगे भी हाँ जी ऐसे 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 हम करेंगे। यू हैव टू एक्शन, प्रॉम्प्ट डिसीजन, वो सिचुएशन के मुताबिक आप कर रहे हो, और जो चीज आप सिचुएशन के मुताबिक करोगे वो उस सिचुएशन के में सडन आपने उन चीजों को करना है। इसका मतलब है कि वो आपका प्लान्ड है। कभी भी आप लगी हुई आग बिल्डिंग को आप प्लान्ड तरीके से बचाने की कोशिश नहीं करोगे। यू आर टेकिंग एमरजेंट डिसीजंस एट द टाइम डिसीजन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो जो आपने बात कही है ना माय डियर कि जी स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, बात है कि मैंने भी अभी वही बात की है। लेकिन जब कभी आप अपने क्राइटेरिया बेस्ड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप को काम करते हुए आपने एक काम करना है, उसको आप लोग क्या कर, वो रैशनल है। जैसे मैंने कहा अभी कि आपने जी हाउ यू आर सपोज टू मेक अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग 3 किस्म की बेसिकली होती है वैसे। रैशनल डिसीजन, उनमें एक बाउंडेड रैशनलिटी और एक इंट्यूटिव डिसीजन। जो इंट्यूटिव डिसीजन होते हैं ना वो कभी भी लीनियर थिंकिंग नहीं होती। ये लीनियर थिंकिंग आपकी, यस दैट इज अ जजमेंट। और जजमेंट क्या है कि सडन आपने उसी टाइम के ऊपर बेस्ड अपॉन यू हैव डिसाइडेड कि मैंने ये करना है, तो वहां तो आपने रैशनल और स्टेप बाय स्टेप जाके काम नहीं किया। मैं क्लास में एक सिचुएशन अराइज हुई, मैंने उसी टाइम के ऊपर उसको टैकल किया, और वो मेरा डिसीजन क्या था एट द टाइम, बेस्ड अपॉन माय नॉलेज, बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड बेस्ड अपॉन माय like the accumulated judgment that I have।
और आई हैव यूज दिस वन एंड आई कंक्लूडेड समथिंग वन, वो थी क्या, इंट्यूटिव, वो नॉन लीनियर है माय डियर। तो हम जब कभी आपको अकाउंटिंग का क्वेश्चन करवाने के लिए मैं कहूँ जी कि बैलेंस शीट बनानी है तो स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 पे ये, स्टेप 3 पे ये, स्टेप 4 पे ये प्लान्ड है माय डियर। और फिर मैं कहता हूँ जी कि ये बैलेंस शीट का डाटा है, इसको इन स्टेप्स की बेसिस के ऊपर यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट इट लाइक। क्या करोगे आप, रैशनल है, मीन मैंने कहा जी स्टेप 1 पे पहले ये करना है, फिर 2 पे, अब यू आर यूजिंग दी स्टेप इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट योर बैलेंस शीट जेंटलमैन। सो दैट इज वे कि जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करने जाते हो, कोई चीज करने जाते हो, कोई प्लान करने जाते हो, अगर आपके पास गिवन चॉइसेस आप जो दी गई हैं और इन गिवन चॉइसेस को दोबारा देखिए कि ये चीज क्या है। अब आप ऐसा नहीं करोगे पहले ये करके फिर इसको करो, नेचुरली पहले ये करेंगे, फिर ये करते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शन नहीं लिया आप इधर आ जाए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो यू आर सपोज टू फॉलो सच सॉर्ट ऑफ रूल्स, steps. This is what that is called a rational model in which intentionally you are following and you are opting a certain steps in order to make and to arrive at any point and for the accomplishment whatever the case like। ये इसको हम कहते हैं रेशनल डिसीजन। तो लिहाजा प्लान जो स्ट्रेटजीज की जो अप्रोच होगी वो हमेशा क्या है, वो इसीलिए उन्होंने, अगर मैं आपको ये बात बताऊं बच्चों, ये जरा थोड़ा सा यहाँ क्या लिखा था कि प्लान स्ट्रेटजी इज देयर फॉर द फॉर्मल ऑल द बिजनेस टेक्स्ट बुक। आपको हर बिजनेस की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिखा है कि जी स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीजें फॉलो करके स्ट्रेटजी को बनानी है। लिहाजा हर बुक उसमें अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा जी इस तरीके से काम करें, उसको हम रैशनल मॉडल कहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज उस मॉडल को फॉलो करके आप बनाओगे उसको हम हमारे यहाँ पर्पस के लिए प्लान स्ट्रेटजी कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी कोई डाउट है तो प्लीज यू आर सपोज टू आस्क। और व्हाट इज द कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आपने एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ देखना है। व्हाट आई हैव सेड कि प्लान स्ट्रेटजी कहाँ यूजफुल होगी, वेयर द एनवायरनमेंट इज Static environment. स्टेबल स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर जितनी उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी We ये come स्ट्रेटजी effective वहाँ होगा। यूज नहीं हो सकती। या दिस इज व्हाट लाइक, क्योंकि कॉन्टीजेंसी फैक्टर जितने वेरिएबिलिटी उसमें आएगी, एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी मोर अनसर्टेन, मोर एंड मोर अनसर्टेनिटी। तो आपको फिर सिचुएशन के मुताबिक उसी स्पॉट पे आपको डिसीजन करने होंगे। तो लिहाजा उसका मतलब प्लान स्ट्रेटजीज, मैं अभी आपको आगे चल के इसको मैं प्रूव भी करूंगा। एनी हाउ माई पॉइंट वॉज दैट जस्ट टू टेल यू एट द मोमेंट माई डियर रिकॉर्डिंग। जी जी, कल आपने बताया था कि ये स्ट्रेटजी जो होती है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए होती है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव हमेशा उधर ही होगा जब स्टेबल एनवायरनमेंट होगा। तो इस लिहाज से ये भी नहीं माय डियर, ऐसा नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है असल में। ऐसा नहीं कि जहाँ स्टेबल, अब आपकी इंडस्ट्री है, ऑटो भी है, मोबाइल वाले भी हैं, तो क्या आप समझते हैं सीमेंट वाले भी है? सीमेंट की इंडस्ट्री इतनी वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ना नई सीमेंट और नई उसमें वेरिएशन आती है, ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर आप उसको देखेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री रिलेटिवली क्या है, स्टेबल एनवायरनमेंट में है। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री और कंप्यूटर इंडस्ट्री को आप क्या कहेंगे, इट इज मोर वोलेटाइल वन, बिकॉज देयर इज सो हैवी इन्वेंशंस आर देयर, सो ऑब्सोलेसेंस बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। अब माय डियर, आप सीमेंट इंडस्ट्री में प्लान स्ट्रेटजीज ज्यादा सक्सेसफुल चला सकोगे, लेकिन आई थिंक इन दी कंप्यूटर वन लाइक आपको माइट भी आपको सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन अब देखिए बात है, स्ट्रेटजी कभी भी मैंने बताया कि इट इज नॉट मेड फॉर 1 month 2 month 6 month, उसका टाइम हमेशा क्या है, दैट इज कवरिंग अ 3 year 4 year 5 year मोर देन 5 year टाइम। लेकिन देखो हमारे यहाँ एक stubborn एक प्रॉब्लम आता है। हम लोग समझते हैं कि शायद यार, जैसे मिशन के बारे में लोगों का ख्याल है कि वंस मिशन मेड, अब वो इंटैक्ट रहेगा, उसे चेंज नहीं कर सकते। माय डियर, स्ट्रेटजी जब बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्लीज
लेकिन उसमें आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रैटेजी आपने एक आसमानी सहीफा बना ली और उसको आपने अपनी ड्रॉज में रख लिया और सारी चीजें उसके मुताबिक होती रहेंगी, ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन देयर माइट बी सम, अभी पॉलिटिकल कंडीशन गवर्नमेंट कोई नया रूल एंड रेगुलेशन ले आती है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं, यू हैव टू एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल इश्यूज उसमें आ गए हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हैं, और अब आपने आज बनाई थी लेकिन साल बाद इन्वायरमेंट हैज बीन चेंज, और इसका ये मतलब ही नहीं कि वो स्ट्रैटेजी छोड़ के आप भाग जाओगे किसी जगह, बट आई थिंक this is ongoing process and you have to adjust your strategy. What last time that we have mentioned, adapt or yeah, change or die. Adaptation हमेशा होती है, लेकिन point is this one कि whether the strategy is like in a high dynamic environment और या वो stable हो। सवाल ये है कि यहाँ आपका जो इशू वो ये है कि planned strategies would be more desirable in environment which is a stable one, but जैसे जैसे हम अभी आगे जाएंगे तो फ्री व्हीलिंग का जो बात है जो अभी मैंने बताया है, और इसी तरीके से इंक्रीमेंटलिज्म जो है, तो ये फिर उसके अंदर जो इन्वायरमेंट में जितनी वॉलेटिलिटी माय डियर होगी उसके मुताबिक हम करेंगे। अब जैसा मैंने बताया आपके इंट्यूटिव डिसीजन हमेशा कहाँ होंगे, जहाँ आपको सडन डिसीजन करने की जरूरत होगी वहाँ आपको इंट्यूटिव डिसीजन करने पड़ेंगे, क्रिएटिव डिसीजन करने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ आपके पास टाइम है और लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आ देयर तो फिर आप उसमें रैशनल डिसीजन कर सकते हो। जब आपके पास टाइम की कॉन्स्ट्रेंट आ गई, आपके पास टाइम नहीं है, सडन यू हैव टू डिसाइड बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि देयर इज सो इमरजेंसी वन, तो माय डियर यू हैव टू मेक अ इंट्यूटिव डिसीजन। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि हम हमेशा इंट्यूटिव, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ एनालिसिस बेस्ड प्लस इंट्यूटिव बेस्ड डिसीजन। तो अगर आप फ्रेड की बुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, वो कहते हैं जी ये इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एनालिसिस प्लस इंटीग्रेशन, आई मीन इंट्यूटिव बेस्ड, इट मींस इंट्यूटिव इज नॉन लीनियर एंड the analysis is a rational one, but anyhow this is the planned strategy what I am talking. I hope so, okay, you are satisfied ladies and gentlemen? Yes sir. अच्छा जी प्लीज। अच्छा अब देखिएगा ये हमारे पास नेक्स्ट इज व्हाट दिस इज, जरा देखिएगा ये डेलिबरेट एमरजेंट चेंज, पहले मैं मॉडल जरा इसको शो कर दूं। देखें व्हाट इज बीइंग देयर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज डेलिबरेट स्ट्रेटजीज, ये जरा एरो ब्राउन कलर का इधर, और ये रियलाइज्ड है। ये जो आपका रेड कलर में एरो इधर मूव कर गया, ये है अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज, और यहाँ क्या है कि एमरजेंट स्ट्रेटजीज का ये ग्रीन एरो हैज बीन शोन। वुड यू लाइक टू टॉक नाउ, ये मॉडल क्या शो करता है? चले मैं अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अ फॉर्मल प्लानिंग दैट इज इंटेंडेड ऑन हेल्पिंग द कंपनी अहेड विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स. Emergent strategies focus on unforeseen circumstances, whereas deliberate strategies are completely blind towards unexpected circumstances. अच्छा अब जरा सुनिएगा। प्लान में मैंने क्या बताया कि एक आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसको लेके चलते हो और उसको सिस्टमेटिक वे में आपने बनाया, लेकिन माय डियर आपकी जो डेलिबरेट स्ट्रैटेजीज और जो एमरजेंट स्ट्रैटेजीज हैं, चूंकि आपने एक स्ट्रैटेजी किस तरह स्टार्ट की है, फॉर्मल मैनर में, ये आपकी फॉर्मल थी। डेलिबरेट का मतलब ही क्या है? इंटेंडेड, आप चाहते हो कि जी मैं ये अचीव करना चाहता हूं, उसके लिए आपने क्या किया, एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी बनाई, और ये एरो जो इधर जा रहा है, और जो इनमें से चीजें आपकी अचीव हो जाएंगी वो रियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज बन गई, क्योंकि उनमें से जो चीज अचीव हो गई वो रियलाइज्ड है, जो अकम्प्लिश्ड है वो रियलाइज्ड है। लेकिन देयर आर सर्टेन इन्वायरमेंट, ये जो रेड एरो शो कर रहा है, अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं कि वो चीजें जो आपकी अचीव ना हो सकी, और अच्छा अब माय डियर वो क्यों नहीं अचीव हो सकी? ड्यू टू चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, ड्यू टू चेंज ऑफ फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज ऑफ द वेरिएबल लाइक। अब माय डियर उस वजह से
आपके वो चीजें जो नहीं अचीव हो पा रही, इनका मतलब है दूसरे लफ्जों में बात को सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपकी 100 में से 70% चीजें जो आप चाहते थे वो अचीव हो गई, लेकिन 30% अचीव नहीं हो रही, उनको आप क्या नाम दोगे? अनरियलाइज्ड। माय डियर, इस अनरियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज के लिए अब आप क्या बनाओगे? एमरजेंट स्ट्रैटेजीज। देखिए एमरजेंट का जरा लफ्ज जब जानने की कोशिश करें, एमरजेंट होती क्या चीज है कि जो एट अ टाइम, इसका मतलब उस 30% जो चीजें आपकी नहीं अचीव हो सकी, विच रिमेन अन अचीवेबल, या उसमें कुछ चेंजेस थी वो अचीव नहीं हो रही, अब माय डियर उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो वो आपकी कौन सी हैं? इसका मतलब है कि एमरजेंट स्ट्रैटेजीज आर मेड एट दैट टाइम कि जो उस सिचुएशन के मुताबिक, चूंकि ये आप इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाते हो, और जब आप ये स्ट्रैटेजीज यहाँ से यहाँ की तरफ चले गई और आपने 30% वो भी अचीव कर लिया, तो ये रियलाइज, लिहाजा ये है कॉन्सेप्ट डेलिबरेट एमरजेंट। डेलिबरेट मीन इंटेंडेड, विच यू आर डिजायरस टू अचीव, और उनमें से जो चीज अचीव हो गई वो रियलाइज हो गई। बट माय डियर 100% यू आर नॉट गोइंग टू अचीव। उनमें से वो चीजें जो आपकी ड्यू टू चेंज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट जो नहीं हो पा रही, वो अनरियलाइज्ड है। और माय डियर अनरियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी? एमरजेंट स्ट्रैटेजीज लाइक। अब आइए जरा थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। समवन मे आस्क यू। जी जी प्लीज। इसका मतलब कि हम जो डेलिब्रेट और एमरजेंट स्ट्रेटजीज है वो हम फॉर्मल या रैशनल प्लानिंग के साथ बनाते हैं, मतलब एट द टाइम एक हमारा प्लान चल रहा था जी जी, या ये उसके अलावा भी एक अचानक से हम बना के उसको अचीव कर लेते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपने जो तो डेलिब्रेट है वो तो प्योर रैशनल है ना जी, और जब उनमें फेलियर हुआ और अनरियलाइज को अब आपने अचीव करने के लिए नेचुरली उसके पास आपके पास इतना टाइम नहीं होगा माय डियर, तो नेचुरली एमरजेंट का मतलब ही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको काम करना पड़ेगा। लिहाजा उसके अंदर चूंकि ये अनरियलाइज हुआ ही क्या है कि वेरिएबिलिटी आ गई ना, और जितनी वेरिएबिलिटी आई और उसकी वजह से वो काम रिस्क होने की वजह से वो चीज ना हो सकी, वो जो चीज ना हो सकी वो अनरियलाइज स्ट्रेटेजीज थी। अनरियलाइज को आप करने के लिए आपको एमरजेंट स्ट्रेटेजीज, तो ये एमरजेंट स्ट्रेटेजीज इनके लिए नहीं है माय डियर, ये इनके लिए है जो डेविएशन आ गई थी, जो प्रॉब्लम आ गया उसमें, जो चेंज हो गया, जो पॉलिटिकल लीगल आई मीन लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन माइट बी देयर, ग्लोबलाइजेशन, सो इन्वायरमेंटल एंड लॉट ऑफ आई थिंक इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनली जिन्होंने यकदम पेंडेमिक आने की वजह से कुछ वो काम नहीं हो सके, वो अनरियलाइज्ड। अब इन अनरियलाइज को अचीव करने के लिए तो मेरा ख्याल है अगर ये बात अजीम ने की है, अजीम साहब आपने की है, बोले बात की है। जी सर। हाँ तो अजीम आप मुझे बताइए, बड़ी एक कॉमन सेंस की यहाँ लफ्ज है, आपके पास इसको लिए इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप इसको वो करें आप, लिहाजा कुछ आप करेंगे, लेकिन ये चीज इतने आई मीन फॉर्मल तरीके से नहीं होगी, ये जरा थोड़ा सा लेस फॉर्मल होगा, क्योंकि आपके पास जल्दी भी है, आपने वो चीज टाइम आपके पास इतना नहीं है। दैट्स व्हाई पॉइंट इज दिस वन कि इस स्ट्रैटेजीज को, इनको अनरियलाइज्ड पोर्शन को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ये, अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी ये सारी की सारी डेलिबरेट स्ट्रैटेजी सारी की सारी 100% अचीव हो जाएं तो माय डियर ये खत्म हो गई, फिर तो मेरा ख्याल है ये डेलिबरेट बन गई। और ये जो डेलिबरेट थी ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये प्लान्ड है, यस सर। ठीक है। और एमरजेंट कौन सी थी? कि ड्यू टू द फेलियर, ड्यू टू द वेरिएबिलिटी, रियलाइजेशन। यस। अच्छा आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, क्या आप मुझे बताओगे कि एमरजेंट स्ट्रैटेजीज के लिए आप कहें जी हम रैशनल करेंगे? नो, यहाँ a bit more informal way would be used because your situation have been changed. Suddenly you have to respond it like according to the situation, contingency would be used, and that's why I think you will not be so formal in a sense like and so rational. You don't have a time, but the point is this one, and now this is the point you have to get it like pure. I mean, like planned strategies are the pure strategies designed approaches on the basis of formal manner, while a deliberate strategies are a formal. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जी लाइक अनरियलाइज स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए क्या करोगे, फौरन जवाब दीजिए एमसीक्यूज में एमरजेंट। और एमरजेंट जब आपकी अचीव हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है ये 70% तो ये वाली थी, और 30% जो अनरियलाइज की वजह से जो एमरजेंट को हमने किया, मेरा ख्याल है यू विल एग्री
ये फॉर्मल ज्यादा है और ये इतना फॉर्मल नहीं होगा। और थैंक यू सर। ये माय डियर ये क्या है, यहाँ से ये ब्लू जरा एरो देखिए, स्ट्रेटेजिक लर्निंग। लर्निंग क्या हुई है आपको? लर्निंग ये हुई है कि जनाब इन्वायरमेंट आपका बदल सकता है और उस बदले हुए इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड एमरजेंट। अब ये ना कहिए कि हर चीज दैट वुड रिमेन स्टेबल, because this is strategic management, and strategic management is not just for one month. This is covering a span of 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that's why I think volatility is a and volatility depend upon number of factors and number of sector, number of area, number of industry, and that's what I think you have to take this understanding in your mind, in your cognition. Otherwise, you will not be able to impress to someone after even doing your ICMA, ACMA P, because your smartness is because you should have a comprehension, you should have application of all such sort of things like, yeah. अच्छा, अभी आप देखिएगा इसी को मैं एक और ये भी वही चीज है वैसे, लाइक आप देखिए ये थी माय डियर, यहाँ लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। तो माय डियर आप इसका मतलब है कि लफ्ज इंटेंडेड भी इस्तेमाल हो सकता है और लफ्ज डेलिबरेट भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब जो इंटेंडेड आप चाहते थे ये रियलाइज्ड, अच्छा, लेकिन ड्यू टू चेंज ऑफ सम डेविएशन चेंज और फिर क्या हुआ, ये इधर आए। इसका मतलब है ये है आपके इन्वायरमेंट में तब्दीली कुछ आई है और बैरियर कुछ आने की वजह से वो अनरियलाइज स्ट्रेटेजीज। अब अनरियलाइज्ड को अचीव करने के लिए ये इमरजेंट स्ट्रेटेजीज आपने बनाई और वंस इट इज अचीव, तो माय डियर रियलाइज स्ट्रेटेजीज में हैविंग टू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। अब आप एक इक्वेशन बना लो प्लीज कि क्या करेंगे आप इक्वेशन में, डेलिबरेट प्लस emergent strategies is equal to realized। अच्छा, अब सवाल इसके अंदर जो थॉट है जो जानने का, वो आपसे को पूछ सकता है जी कि एमरजेंट स्ट्रेटजीज हम कब बनाते हैं? तो बताइए कि जनाब जब ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, और उनमें से जो नहीं हम कर सकते, तो जो हमारी अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज की अचीवमेंट के लिए जो हम प्लान बनाएंगे, जो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, वो एमरजेंट है। लिहाजा जो रियलाइज्ड स्ट्रेटजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इंटेंडेड प्लस एमरजेंट। लेकिन एमरजेंट क्यों बनानी पड़ती है? ड्यू टू unrealized। I hope so you have comprehend this concept in a very very smart manner, I hope so। or yes, if sir, what this one, this would be my player, I hope so okay you will enjoy this concept like, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा माय डियर, आगे चले हम, लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म। और देखिए ये भी एक वे है, दिस इज आल्सो अप्रोच दैट इज यूज्ड। तो पहली बात है हम इंक्रीमेंट होती क्या चीज है कि जहां आप इंक्रीज, इसका मतलब है कि पास्ट को आप नहीं भूलेंगे, पहली बात ये। मैं फॉर एग्जांपल देखो बजटिंग के अंदर भी ना जी, जब हम इंक्रीमेंटल बेस्ड बजटिंग करते हैं तो यू नो उसमें क्या होता है कि जी आपका जो बजट है उसका पिछले साल को रेफरेंस लेते हुए उसमें आप ऐड प्लस करो। लेट्स से मैंने 10% फिगर को ऐड कर दिया जी, तो जो रेवेन्यू पहले 100 थे, 10% एडिशन के साथ नाउ रेवेन्यू वुड बी 110। Yes, इज इट? बिकॉज दिस इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन एडिशनल उसमें इंक्रीज कर देना, दैट इज इसका मतलब पास्ट। अब अगर मैं आपको 2019 की बेस ना बताऊं और मैं कहूं जी इंक्रीमेंटल बेस बजटिंग बनाए, तो कैन यू प्रिपेयर योर बजट? no sir। दैट्स व्हाट। अच्छा, यू नो चले मैं बजटिंग की आप सुन बड़े होते हैं वैसे एसीएमए वाले, एक जीबीबी एक कॉन्सेप्ट है, डू यू पीपल नो अबाउट व्हाट इज जीबीबी? जीरो बेस्ड बजटिंग। व्हाट इज दिस वन जेंटलमैन? सर न्यू बनाते हैं, बिल्कुल बेस उसकी कोई नहीं होता। नहीं, क्या मतलब बेस कोई नहीं होती? तो इसमें आई एम नॉट कन्विंस्ड। स्क्रैच मीन हम व्हाट? अपनी कंट्रोल एक्टिविटीज ढूंढते हैं और उन एक्टिविटीज के हिसाब से उनको बजट एलोकेट करते हैं जीरो से। अच्छा, थैंक यू। अब बात काफी चलें टू मी फ्रॉम माय साइड थोड़ा सा एडिशन इसमें कीजिएगा। जो मैम ने भी अभी बात की स्क्रैच का, स्क्रैच मीन फ्रॉम द जीरो बेस, इट मीन हम उसमें इंक्रीमेंटल की तरह कोई बेस रेफरेंस नहीं लेते
और वी आर एलोकेटिंग आवर टोटल फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रायोरिटाइजेशन की बेसिस। इट मीन अगर हमारी 10 एक्टिविटीज हैं और हमारे पास 1 मिलियन है तो हम पहले वेट्स देखेंगे कि जो एक्टिविटीज ज़्यादा अहम है उसके वेट ज़्यादा होंगे, लिहाजा उसको एलोकेशन भी ज़्यादा करते हैं। दिस इज कॉल्ड ZBB। ओके, लिहाजा जो पंच लाइन है वो ये है कि इंक्रीमेंटलिज्म में पास्ट को जहन में रखिएगा। अब जरा मैं पास्ट पे मैंने फोकस किया है, आइए जरा। दिस अप्रोच सुजेस्ट दैट स्ट्रेटजी टेंड टू बी स्मॉल स्केल एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट पॉलिसी माय डियर, rather than radical change। रेडिकल चेंजेस नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है। हाँ, हमने क्या किया कि जो पास्ट की पॉलिसी थी उसी को एक्सपेंशन की तरफ उसमें कुछ इजाफा कर दिया। ये लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म है। आपने जो पिछली स्ट्रैटेजी बनाई थी उन स्ट्रैटेजीज के अंदर थोड़ा सा ऐड प्लस करके उसी को आगे कर दिया। अब मुझे बताइए विच टेक्निक एंड अप्रोच यू आर यूजिंग। आप कहेंगे ये हमारी प्लान स्ट्रैटेजी है? would you like to call it कि जी हमने वो डेलिब्रेट और एमरजेंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं? नहीं सर, एमरजेंट हो सकती है अचानक से, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया है, डेलिब्रेट नहीं हाँ, है। लेकिन उसके अंदर ये है कि वो एमरजेंट इस सेंस में है कि वो मतलब ये बड़ा इजी सा काम इस सेंस, पास्ट की बेसिस के ऊपर आगे 10%, 5%, 20% आपने उसमें इजाफा कर दिया। सर इमरजेंट कैसे बनेगी ये? नहीं, एमरजेंट का मतलब ये है, वो ये जो अजीम ने बात कही है, मतलब प्लान नहीं है अब। हाँ, मतलब वो जो वाला पोर्शन प्लान तो वो था जो पिछला है, और बाकी वो जो है उसमें इमरजेंट तो उस पर बनाते हैं ना कि अगर कोई अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज है नहीं, उनको वो यहाँ थोड़ा सा वो ये कहना चाह रहे हैं एमरजेंट ये प्योर वो ऐसे नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि इन्वायरमेंट आपका इसके अंदर भी क्या है कि फोरकास्टेड है, आप प्रेडिक्टेबल है, और दैट्स वाई आपने उसमें 10%, 20% का इजाफा कर दिया और आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो रेडिकल चेंजेस नहीं है उसमें अंदर, पास पॉलिसी और लेकिन मेरे ये बुक में पढ़ा था, ये जो इंक्रीमेंटल है और आगे भी मेरे ख्याल से आप पढ़ाएंगे, ये सारी एमरजेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आ रही हैं। नहीं, वो एमरजेंट स्ट्रेटजीज इस सेंस के मतलब प्लान नहीं होती नहीं, इसको नेचुरली उसकी वजह क्या है कि देखिए मेरी बात सुनिए, पास्ट में जो 2019 था उसको हमने बेस बना लिया, उसमें कुछ जाहिर बात है ये उस तरीका का सिस्टमैटिक एनालिसिस है ही नहीं, पहली बात है मिस्टर अजीम। ठीक है, ये उस तरीके का प्लान है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई इंक्रीमेंटल के ऊपर आपका थोड़ा सा फोकस है और यू हैव यूज। और इंक्रीमेंटलिज्म इनिशियली डेवलप्ड बाय लिंडब्लॉम does not believe that the rational model of decision making is sensible and suggests that in the real world it is really used. This is because strategy is not usually decided by the autonomous strategic planning teams that have time to impartially shift all the information and possible option before deciding on। वो कहता है जी कि एक इंडिपेंडेंट टीम्स वगैरह तो ये बना ही नहीं रही होती, तो दैट्स व्हाई आई थिंक आप क्या करो, पिछली जो भी स्ट्रैटेजी उसी को एक्सटेंड कर लो, बस उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लो। ठीक है जी, आगे चलें। नाउ दिस इज फ्री व्हीलिंग। तो माय डियर, फ्री व्हीलिंग का है ही मतलब दिस इज एब्सोल्यूट योर डायनामिक एनवायरनमेंट। और फ्री व्हीलिंग opportunism suggest that organizations should avoid formal planning and instead simply take advantage of the opportunities as they arise, my dear। देखा, इसका मतलब है ये आप फ्री व्हीलिंग कहाँ करोगे opportunism, जहाँ डायनामिक एनवायरनमेंट, हाईली डायनामिक वन, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, मेरा कहने का जो अपॉर्चुनिटीज है उसके मुताबिक आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए उस सिचुएशन के मुताबिक आपने उसको बना दिया। और नेचुरली यहाँ आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत लंबे टाइम की नहीं होंगी कि अगले 10 साल के लिए, बल्कि यू आर मेकिंग स्ट्रैटेजी माइट बी आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर की आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटीज बनती है उसको आप अवेल करने की कोशिश करते हो, बस। अच्छा, आप देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, ये है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को थोड़ा सा इनरिच होना चाहिए कि विच अप्रोच टू स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड। अब अप्रोच में ये है माय डियर, दिस इज व्हाट फॉर्मल प्लानिंग ऑन योर लेफ्ट साइड एक्सट्रीम एंड नो फॉर्मल प्लानिंग ऑन योर राइट एक्सट्रीम। अब आइए जरा इसके अंदर ये रैशनल मॉडल
emergent approach, incrementalism, freewheeling. तो माय डियर, जहाँ एक्सट्रीम फॉर्मल प्लानिंग कहाँ हम करेंगे, जहाँ Rational model. इन्वायरमेंट ज़्यादा Plans. स्टेबल होगा, प्लान स्टेबल हो, और जितना जैसे जैसे देखा हम इधर, इसका मतलब Move जैसे कर जैसे रहे हैं. इन्वायरमेंट में चेंजेबिलिटी Changes आती हैं. जाती है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, अब इसका मतलब है कि ये मॉडल जहाँ, इसको ज़रा थोड़ा सा Effective ऐसा नहीं हो. कीजिए। अब मैं अगर कहूँ कि आप लोगों से बात करता हूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, environment is highly dynamic, so radical changeability is there, variability is high, one like hyper competition is there, so change is there, और मैं कहता हूँ कि प्लीज use your rational model to design your strategy, आपको फौरन कहना चाहिए सर सॉरी, we are supposed to use a freewheeling. The reason is that because सिचुएशन इतनी डायनामिक है और हम उसके लिए फॉर्मल प्लानिंग में रैशनल मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो पता ही चला, ये लैडर बनाइए आप, रैशनल मॉडल, फिर एमरजेंट, फिर इंक्रीमेंटलिज्म और फिर फ्री व्हीलिंग। फ्री व्हीलिंग इज एक्सट्रीमली द एंटी टू दी Dynamic environment. उसका जो लाइक, लिहाजा जो आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन को गो थ्रू करने के लिए करना है वो ये है जी, जो इन अप्रोचेस का क्रक्स है प्लीज। ठीक है, जैसे जैसे Yes, sir. इन्वायरमेंट की वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, हम मूव करेंगे फ्रॉम रैशनल मॉडल टू एमरजेंट अप्रोच टू इंक्रीमेंटलिज्म अप्रोच एंड टू फ्री व्हीलिंग अप्रोच। फॉर्मल प्लानिंग और नो फॉर्मल प्लानिंग को हमने यहाँ explain कर दिया। I hope so these approaches have brought some sort of knowledge change in your mind, and Yes, sir. hope so you will be able to adjust your mind and to understand this sort of things like जी। Yes, sir. सर एक एग्जांपल ऐड कर दूं इसमें? वेलकम जेंटलमैन। सर मैंने बुक में यही इसके हवाले से पढ़ा था कि होंडा कंपनी अमेरिका में वर्क कर रही थी और 250 सीसी बाइक्स बना रही थी, तो अचानक उसकी जो मशीनरी है जिससे वो बाइक्स असेंबलिंग कर रही थी वो ख़राब हुई। फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी तो इसकी सेल गिर जाएगी, लेकिन साथ उन्होंने अपना एनालिसिस किया और इमरजेंट स्ट्रेटजीज को अपनाया कि वो 150 बाइक्स भी बना सकते हैं। तो उन्होंने 150 सीसी बाइक्स बनाई और फिर उसकी सेल की, और उसकी सेल विद इन 4 to 5 मंथ इतनी बढ़ गई जितनी वो 250 सीसी से भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, थैंक यू मिस्टर अजीम। ये स्लाइड अगेन उसी की वो चीज़ को कर रही है कि मोर फॉर्मल प्लानिंग अप्रोचेस सच एज रैशनल मॉडल and to a degree the emergent model tend to suit organization which exist in a relatively stable industries, meaning there is a sufficient time to undertake detailed strategic analysis, have relatively inexperienced manager, as formal planning approaches help to ensure they are familiar with the organization as well as providing a series of guidelines they can follow to help them develop a strategy. The more informal approaches such as freewheeling opportunism and to a degree incrementalism tend to suit the organization which are in a dynamic, fast changing industries where there is a little time to undertake formal strategic analysis, have experienced, innovative managers who are able to quickly identify and react to changes in the organization and its environment. Okay. अब 2-4 लंबे लंबे सांस लीजिए प्लीज, आप लोग रिलैक्स थोड़ा सा कीजिएगा। आप लोग जॉबियंस भी हैं जी, जॉब वॉब भी कर रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। अजीम आप कहाँ हैं? सर मैं कर रहा हूँ ईस्टर्न ग्रुप, स्पिनिंग लेदर डेयरी का ग्रुप है ये, उसमें मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है ठीक। और कोई लोग कौन हैं? आज कराची से कितने लोग हैं आज?
भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी कार्ड। सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं हुई आपकी। The voice was not clear, sir. Please, do you like to speak again? नहीं, आवाज आवाज का अभी बहुत डिम है। क्यों आप लोग सुन रहे हैं बच्चों, दूसरे लोग? नहीं तो सर बस वो वॉइस इज द इशू। अच्छा जी, अब आइए, वी आर गोइंग टू, ये मैं एडिशनली जरा एक चीज आप लोग, अच्छा आप देखिए अजीम, थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा। अगर आप आउटलाइन निकालेंगे तो ये उसके अंदर 2-3 आपके एरियाज ये मुकम्मल हो चुके, वहां उन्होंने अलग-अलग चीज। तो एचटीसी का अलग से मेमोरी कार्ड भी मिलता है, उसमें ये होता है कि माइक्रो एसडी कार्ड आता है जो कि वो स्टैंडर्ड होता है, वो सब मालूम जाता है और उसमें अगर रनिंग साइज आता है तो चेक करें दिन में कौन सा साइज लगता है। तो मोबाइल पर ही उसके मेमोरी कार्ड पे आप लिखा होगा, छोटा लिखा होगा ब्लैक कलर में कि कौन से डाटा। जी जी, ये कोई वॉइस है जी इसमें दरमियान में? अच्छा जी प्लीज। इन फैक्ट आपकी प्लान स्ट्रेटजीज हो गई, एमरजेंट स्ट्रेटजीज, और वो जो जब आप अदर अप्रोचेस की बात करोगे तो अजीम उसके अंदर ये फिर इंक्रीमेंटलिज्म और आपका ये जो फ्री व्हीलिंग होगी, अपॉर्चुनिटीज। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब आइए जरा एक ना 5 P's ऑफ स्ट्रेटजी, मिन्सबर्ग ने ये 5 P's दिए हुए हैं कि जी स्ट्रेटजीज की जब हम इसको करते हैं तो ये आप दिस इज व्हाट प्लान, पैटर्न, पोजीशन, पर्सपेक्टिव, प्लॉय। ठीक है जी, 5 P's, जिस तरह मार्केटिंग में 4 P's हैं जी। प्लॉय क्या होता है? वो अभी हम आ रहे हैं जेंटलमैन। अच्छा, तो 5 P's को बेस बना के वी आर डिजाइनिंग द स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान। अ स्ट्रेटजी इज अ प्लान फॉर डीलिंग विद सिचुएशंस। अच्छा, मैं आप लोगों से सिचुएशन पूछ सकता हूँ, किसको हम कहते हैं? सिचुएशन क्या होती है अजीम? सर एनी इवेंट इन एनवायरनमेंट। क्यों जी डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना, कोई बात क्लियर हुई? एनी इवेंट इन एन एनवायरनमेंट, एन इवेंट अकरिंग इन एनवायरनमेंट। इवेंट अकर कैसे होता है सर? कोई भी कंडीशन हो सकती है या जी 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 बेटा बोलिए, बोले तो यू आर फ्री टू मेक योर डिस्कशन, प्लीज मेक दिस डिस्कशन मोर फ्रूटफुल, अंडरस्टैंडेबल। लाइक अभी भी मैं जो समझता हूँ वो अभी पार्टिसिपेशन उस लेवल की नहीं है, और particularly Karachi, Islamabad, Lahore is a bit active, but I think Karachi is not participating, Islamabad is not participating. Only I think sir necessary और unnecessary sources, मतलब जब हो किसी सिचुएशन है तो उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हो और उसमें से अपने लिए सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को प्लान करना, सिचुएशन ऐसी कुछ हो। एक्चुअली देखिए मेरी डेफिनेशन के मुताबिक सिचुएशन इज नथिंग एक्सेप्ट the factors, number of circumstances, number of factors, number of variable once happen, वो जो मिलके है जिसको अजीम ने इवेंट कहा, वो इवेंट है, सिचुएशन है। और यू नो सिचुएशन बजाते खुद कुछ नहीं है, सिचुएशन डिपेंड अपॉन फैक्टर, वंस फैक्टर चेंज सिचुएशन चेंज। मसलन अभी आप देखिए इस वक्त मेरी और आपकी सिचुएशन में डिफरेंस है। माइट बी वो बच्चे जो अभी जॉब नहीं कर रहे उनकी सिचुएशन डिफरेंट है और माय सिचुएशन इज डिफरेंट। यू आर लिविंग, समवन इज कराची, सिचुएशन इज डिफरेंट। आई एम लिविंग इन मुल्तान, सिचुएशन इज डिफरेंट, एज वाइज, फाइनेंशियल फैक्टर वाइज। तो देखा हम सब की सिचुएशन, अगर हम इस क्लास में जितने भी लोग हैं उन सब की सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, इवन आपके घर के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है, इट वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। छोटा भाई वो कहते हैं मेरी सिचुएशन ये है, बड़ा भाई की सिचुएशन ये है, वालिदैन की सिचुएशन और है, किसी की और। वजह क्या है?
उनकी एज डिफरेंट है, उनकी नॉलेज, उनके पैसे, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, you are someone is earning hand, someone is not earning hand, situation is changed. तो फैक्टर मेक्स द सिचुएशन. प्लीज ये सेंटेंस जरा जहन में रख लीजिएगा. सिचुएशन, ये सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. सिचुएशन इज नथिंग, फैक्टर्स मेक्स द सिचुएशन. Variable makes the situation. Circumstances make the situation. Conditions make the situation. Once factor change, situation change. Situation is nothing. Factor makes the situation. You got the point, see, ladies and gentlemen? Yes, sir. So a plan has to be made before possible actions are taken. And it's also important that the plan is followed consciously and effectively. Goals can only be achieved with a good plan. So they enable manager to give their teams clarity and work towards interim evaluations and final results. However, a clear organization strategy requires more than just a plan. So ladies and gentlemen, whenever you are making strategy, so you are going to prepare a plan. A plan need a goal and how to achieve the goal. Like, so that's why any strategy is based upon the the plan. क्लियर है कि इसमें कोई अजीब कुछ बात करना चाहें आप इस पे? नहीं सर, थैंक यू. अच्छा ये सॉरी, ये थोड़ा सा ये नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर. ये मैं ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी थी, ये जूम हो जाता है. जी जी जी, मोबाइल पे जूम हो जाता है. अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू. ये अब थोड़ा सा मैं इसे मैनेज कर लूं जरा. आई एम सॉरी. सर नीचे जो स्क्रॉल है उसमें चलें, ये मेरा ख्याल आप सफिशिएंट है. अच्छा, आप देखिए, एनी स्ट्रेटजी, another P is, that is a pattern. What pattern means? We are making a plan is about the intended strategy. Pattern are about strategies that have been implemented before. On the one hand, there are strategies that achieve their intended result. On the other hand, there are strategies that still have to be worked out in more detail. For those, earlier patterns are an important part of developing the new strategy. It's about a regular pattern in the decision-making flow. If certain choices have already been made in the past, an organization is likely to make those decisions again in the future. In such cases, past behavior is pattern that is included in strategy development. So my dear, हम जब कोई पास्ट जो चीजें हैं उनको दोबारा अपनी उसी पैटर्न पे, उसी वे में जब अगर करें, तो आई एम श्योर लाइक दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी पैटर्न. आपने सेमेस्टर स्टेज 1 में जो वे में स्टडी की, सेम वे इफ यू आर यूजिंग, तो माय डियर उस पास्ट बेस्ड वे को जब आप दोबारा यूज कर रहे हो, उसको हम क्या नाम देंगे? पैटर्न. क्लियर? तो नंबर 1 क्या हुआ? प्लान. नंबर 2 पैटर्न. नंबर 3 क्या है? पोजीशंस. लाइक now please my dear, position is what? This is about the organization position in the market. ये जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. और ये चूंकि आगे ना एक हमारा कॉन्सेप्ट अजीम और डियर स्टूडेंट्स आना है स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले के साथ. स्ट्रेटेजिक बहुत अहम चीज है, क्योंकि हम जब स्ट्रेटजीज बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले हमें अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखनी होती है. देन वी आर डिसाइडिंग कि हम क्या करें. This is about the organization position in the market, the interaction between the internal and external context. It is important to consider carefully in advance how the organization want to position itself, my dear. ठीक है? आप जब एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करते हो या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस इन्वायरमेंट में जो 10 कंपनीज हैं और मैं 11वीं कंपनी के तौर पे मैं कैसे एंटर हूँ, मैं क्या करूँ, वेयर आई शुड हैव टू, और मैंने अटैक करना है तो कैसे करूँ, कॉस्ट लीडरशिप में जाऊँ, डिफरेंशिएशन में जाऊँ, और किस तरीके से करूँ. यू हैव टू गेट योर पोजीशन. सो व्हाट विल इट्स आइडेंटिटी look like, and does the match the idea of the stakeholder have of the organization? This can contribute significantly to developing a lasting competitive advantage. My dear, this can contribute significantly to developing a lasting
competitive advantage. So considering the strategic position help against competitors and to give the organization a firm place in the market. My dear, suppose कर लें आपकी जब भी कोई स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग होगी उसके अंदर पोजीशन का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि मार्केट में वेयर वी स्टैंड एंड वेयर आर कंपेटिटर स्टैंड और देन वी हैव टू डू, ये पोजीशन होगा माय डियर। इसका मतलब है कि जब तक आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक पोजीशन का डिसीजन नहीं करते तो लिहाजा आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई मिंसबर्ग हैव कॉल्ड द थर्ड वन पीस एंड दैट इज व्हाट this is the position. You got it? Like now there is what this is the perspective. So the perspective is what perspective is by the year is a strategy is about more than the chosen position. It is also about the larger perspective. It is important to find out how different target audiences perceive the organization. How do the employees regard their employer? What do customers think of the organization? What is their image among investors? All these individual perspectives and thoughts patterns are a valuable source of information for the organization. देखिए प्लीज आप लोगों को देखना पड़ेगा कि perspective from the customer point of view, competitor point of view, from the audience's point of view, from the वो जो आप critical sense में जब आप उन चीजों को इस हवाले से देखते हो तो this is basically called the perspective. So it means that any designing of strategy would also be based upon the perspective. Now please, first one is plan, number 2 is pattern, number 3 is position. Number 4 is perspective, and next one is what? ploy. This is the ploy. Ploy basically is it's also a strategic choice to use a ploy. For instance, one that competitors don't expect. Organization can surprise their environment by implementing a plan that nobody saw coming. For instance, a phone services provider can mislead others by suddenly also offering internet services and digital television. असल में जो है ना प्लॉय बेसिकली क्या होता है, धोखा देने को कहते हैं। Scheming. Yes. ठीक है, तो आप बज़ाहिर आपने शो नहीं किया और यकदम मार्केट के अंदर एक पार्टी कर रही थी लेकिन उससे पहले मार्केट में दैट वाज अनएक्सपेक्टेडली थिंकिंग, वो तो सोच ही नहीं रहे थे ना भी ऐसा, बट यू हैव डन दिस वन। तो चूंकि स्ट्रेटेजिक के अंदर आप लोगों को वंस दैट यू हैव टू मेड योर स्ट्रेटजी, तो मिंसबर्ग कहता है कि सच 5 P's should have to be considered. प्लान होना चाहिए, पैटर्न शुड बी फॉलोड, और पोजीशन, पर्सपेक्टिव एंड प्लॉय कैन आल्सो बी। जी प्लीज सी लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मैं सेंटेंस कहने जा रहा हूँ Yes. और प्लीज वो है कि स्ट्रक्चर फॉलो द स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी फॉलो द स्ट्रक्चर। प्लीज विच वन इज करेक्ट? Structure follows the strategy. सॉरी, स्ट्रेटजी फॉलो द स्ट्रक्चर। No, Strategy follow the structure. फॉलो द स्ट्रक्चर। हम अपना स्ट्रक्चर देख के स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि आपने पीछे हमने ये पढ़ा था कि अगर सीईओ चेंज हो जाए तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। क्या क्या चेंज या हो जाए? सीईओ चेंज हो जाए, ऑनरशिप चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे बाय द वे अजीम, मैंने ये बात नहीं कही, आई एम सॉरी। Yes, sir. मैंने कहा था कि ट्रिगरिंग इवेंट में मैंने कहा था कि आपका न्यू सीईओ एक ट्रिगरिंग इवेंट है, बारिश का होना एक ट्रिगरिंग इवेंट है ना। आप कहते हैं यार बड़ा मजा आया, आज ही ऐसा हो रहा है, आप कहते हैं वो ठीक है, उससे स्ट्रेटजी तो चेंज होगी ना, आपको चेंज लाना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि
तो माय जरूरी डियर, नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, यही तो है अप्रोच कि जो आप सोच रहे हैं। अभी आप देखिएगा, अगर आप सारी उम्र स्ट्रक्चर के मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो आप तरक्की नहीं करोगे माय डियर अजीम। यस सर। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आपका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहो। ठीक है जी भाई, पहले आप क्या करते हो, आप यू आर डिजाइनिंग योर स्ट्रेटजी। कंपनी ये नहीं देखती, कि कंपनी देखती है कि हम वो विजन जो है, विजन कभी आप अपने स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बनाओगे? अजीम बताइए ना मुझे जरा। नहीं सर। तो पाकिस्तान का जो जिन्होंने ख्वाब देखा था, उस वक्त पाकिस्तान में पोटेंशियल तो इतना नहीं था जो उन्होंने, तो ख्वाब तो उनका ऐसा था कि जी, और अगर वो बज़ाहिर जो हालात वाक़यात के मुताबिक, तो वो कभी पाकिस्तान आज़ाद ना होता। सही कह रहे हैं। थैंक यू। तो दैट्स व्हाट के स्ट्रक्चर डज नॉट, जो सॉरी आई मीन स्ट्रेटजी डज नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर। Structure follows the strategy. स्ट्रक्चर फॉलो द स्ट्रेटजी। Yes sir. स्ट्रक्चर फॉलो द स्ट्रेटजी। Yes sir. अच्छा, अब इनफैक्ट आई जस्ट वुड लाइक टू शो, ये बेसिकली ज़रा इस पिक को ज़रा देखिएगा। तो माय डियर, ये एक तरफ आपकी स्ट्रेटजी है, दूसरी तरफ स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान ये मैच होना चाहिए। मीन तो achievement होगी। जब स्ट्रेटजी में तब्दीली आएगी तो यू हैव टू ब्रॉट अ चेंज इन योर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट थिंग, इन अ वेरी क्लियर कट मैनर आपने माइंड में रखिएगा कि जो है वो स्ट्रक्चर फॉलोज द स्ट्रेटजी फर्स्ट। और मैं उसकी एक लॉजिक भी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि आप पहले माय डियर, अगर मैनेजमेंट पढ़ो ना सिंपल, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पहले होता है। तो पहले Yes प्लानिंग, sir. प्लानिंग के Yes, मुताबिक यू आर गोइंग टू डिसाइड योर स्ट्रक्चर। Structure. नॉट स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर प्लानिंग नहीं होती प्लीज। Yes sir. ठीक है, आज जो कंपनीज बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, वो इस वजह से नहीं बन रही, वो इस वजह से बन रही कि वो इस टाइप की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने ये करना है, हमने फास्टेस्ट कस्टमर रिस्पांस लेके आना है, और वेस्टेज को हमने कम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को लीन बनाना है हमने। तो लीन बनाने के लिए देन दे आर मेकिंग बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर। तो बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर इज बिकॉज देयर प्लानिंग इज लाइक दैट। तो आई होप सो अजीम, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ही सोचेंगे जैसा हम कह रहे हैं। ठीक है सर। क्लियर? अच्छा जी, थैंक जी यू। सर। अच्छा, आप जरा देखिए स्ट्रेटजी इंपेरेटिव में अभी मैं आना चाहता हूँ। देखिए माय डियर, ये इंपेरेटिव पता क्या चीज होती है, कि जो चीज जिसके ऊपर बेस करती है, इसेंशियल किसी चीज की जो है वो इंपेरेटिव्स हैं। मसलन अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स नहीं आते तो एडवांस लेवल का कोर्स आपको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंपेरेटिव ये है कि फर्स्ट यू शुड बी हैविंग द बेसिक्स। आपने बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी और आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेरिवेटिव सिक्योरिटीज पढ़ाई जा रही हो, तो मेरा ख्याल यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। द रीजन इज दैट यू डोंट हैव द बेसिक्स। अच्छा, अब देखिए, अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लूं कि दिस इज इन्वायरमेंट, ये स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रक्चर है। अब जरा देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जो जब माय डियर यहाँ चेंज आएगी तो क्या आएगी? स्ट्रैटेजी बदलेगी, और स्ट्रैटेजी बदलेगी तो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? बदलेगा, चेंज हो जाएगा। तो अजीम, इसको ऐसे नहीं करना बेटा जी, ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है सर। थैंक यू। दैट्स व्हाट आई थिंक आवर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर कि जो, अच्छा, अब इसमें सैंडलर एक पर्सन है, उसका एक मॉडल है बेसिकली, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। वो कहता है जी कि इंसान को या कंपनीज को क्या करना होगा कि अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक दे आर सपोज टू brought a change in their structure. If they are not able to do this one, तो नेचुरली वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, वेस्टेज बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, और हेंस कंपनीज परफॉर्मेंस वुड बी नेचुरली वुड बी इफेक्टेड। ठीक है जी। तो अब इंपेरेटिव की समझ आ गई। अब आइए स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन।
So my dear, structure is the design of the organization through which strategies administered. Changes in organization strategy can lead to new administrative problems which will require a new structure for the successful implementation. This is the punchline, my dear students. Like, Yes, sir. please, changes in organization's strategy can lead to new administrative problem. वजह क्या थी? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक. वंस देयर इज अ मिसमैच, वो जो मैंने अभी आपको ये स्ट्रेटजी बताई थी, ये मिसमैच अगर है तो नेचुरली यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव दिस वन. तो दैट इज व्हाट. तो फिर आपको फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्ट्रेटजी or the structural design describe role, responsibility, and line of reporting in organization. A failure to adjust structure appropriately can totally undermine, my dear. ठीक है? So this is what. अच्छा, अब देखिए, we are coming here to talk about this model, and that model is what? ये Chandler strategy structure relationship model is what it is started specifically to Mr. Azim. New strategy is formulated. Gentlemen, उन्होंने ये नहीं कहा कि new structure is being formulated. So at the initial and the starting point, commencing time is new strategy is formulated. अब उसके मुताबिक हमें जैसे strategy हम formulate करेंगे, new administrative problem would emerge. क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपका स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट वन टू मैच एंड टू हैंडल सच सॉर्ट ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक. ठीक है? अब क्या होगा कि आपके वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज आर नॉट एबल टू परफॉर्म व्हाट योर स्ट्रेटजी इज रिक्वायरिंग. प्रॉब्लम आया तो नेचुरली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है. और माय डियर, परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी तो क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट हैव टू इंडक्ट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब आप उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर में चेंज आएगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. और दिस इज व्हाट लाइक, ये है वो जो सेंटेंस मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर फॉलो द स्ट्रेटजी. So which thing is at the base? The new strategy. So strategy की बेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है. ये देखिएगा. अगर आप इसको क्रॉस कर दें, स्ट्रेटजी आपकी हमें पता ही नहीं, वी डोंट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. या अगर स्ट्रेटजी आपकी पहले वाली है तो नेचुरली आपका स्ट्रक्चर मैच करेगा, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. So this is what the Sandler basically have described it. अच्छा, आप देखिए माय डियर, we are talking regarding the structure organizing. तो आई होप सो कि इसके जो रिलेटेड आई वुड लाइक, तो पहली बात है कि स्ट्रक्चर सिस्टम है क्या? ऑर्गेनाइजिंग इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली in order to perform the work in a company, or it describe about the responsibilities, about authorities, about accountabilities, about the work duties, so vertically, horizontally. So there are 6 basic elements of structure. Whenever you are going to make structure, वो structure का impact वो जो होगा वो taller होगा, vertical होगा या horizontal. Like उनमें 6 हैं आपके. नंबर 1, work specialization, which may be called that is called the division of labor. So there is a chain of command, there is a span of control, there is a centralization or decentralization, there is a departmentalization, and there is the formalization. तो माय डियर, हम इन 6 में जब भी कभी कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर या तो वर्टिकल जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा. एनी हाउ, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपनी से. अच्छा, देखिए, आज की दुनिया में जब हमने ये बात कर ली तो ओडी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की बात करते हैं. मीन मेकिंग द स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया है, अब वो आज की दुनिया में ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं और कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हैं. कोई पर्सन वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं?
अभी कोई इस्लामाबाद वाले ज्वाइन किया हुआ है प्लीज? Is there any person who have joined from Islamabad campus? जी, any person who have joined from Karachi? जी please. जी Azim, you are raising your hand. What about Arbaz Khan, Mohammad Zishan, Usama Gulzar, Sajjad Mahmood? आप बता सकते हैं स्ट्रक्चर मीन क्या ये जो हमारा सॉरी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चीज आती है? जी anyone in जी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आपने बनाना क्या करोगे माय डियर? कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे? क्या है उसकी कुछ नेम है? चलें की बात करनी है चेन ऑफ कमांड की? नो चेन ऑफ कमांड तो भाई माय डियर वो मैंने बता दिया, वो एलिमेंट्स ऑफ ओडी है, वो एलिमेंट्स हैं कि आपने जब स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आप चेन ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ लेबर करोगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ जी प्लीज एक्सक्यूज मी, आवाज कोई हेलो हेलो की आवाज आ रही थी जी प्लीज। तो जी प्लीज। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में पावर के लिहाज से फ्लो होगा हायरार्की वाइज? नॉट एट ऑल माय डियर। 3 स्ट्रक्चर्स हैं, उनके नाम सुन लीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल जिसके अंदर चंद एक डिपार्टमेंट और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हो और अपने यहाँ मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ आप उसमें वो चीज़ों को डिपार्टमेंट, जैसे आप कहते हैं ना हमारे यहाँ जी 20 डिपार्टमेंट है मार्केटिंग फिनांस और हर काम डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है। इसका मतलब द होल वर्क हैव बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क ग्रुप and each group have been called a department. It means your structure is departmentalization. That is a department. Further department may be product wise, geographical departmentalization. So there is a process one, product one, customer based departmentalization, functional departmentalization is there. ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऐसे फंक्शनल कहते हैं स्ट्रक्चर। और फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अभी आप देखिएगा, मैं जो बात असल में देखो अब दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस की तरफ आते हैं। माय डियर, बिजनेस हमेशा क्या होता है, स्मॉल बिजनेस से साइज में, वॉल्यूम में जब बड़ा होता जाता है तो यू मस्ट हैव टू चेंज योर स्ट्रक्चर प्लीज। तो दैट्स व्हाट साइज एंड स्ट्रक्चर, ये आपस में क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस का साइज इज गोइंग टू चेंज, योर स्ट्रक्चर वुड बी चेंज। आप मुझे बताइए, चले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल, आप लाहौर में बैठे हुए हैं तो मुझे बताएं कि आपके लाहौर में और एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ एक कॉलेज है वहाँ सपोज, मुझे बताएं कॉलेज का सॉरी आवाज में कैसे डिस्टॉर्शन हो गई थी सर। चलें अब आ रही है जी आवाज? जी प्लीज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपके एक कॉलेज है और एक यूनिवर्सिटी है। मुझे बताइए कि डू यू थिंक दैट यू हैव टू हैव अ सेम स्ट्रक्चर फॉर कॉलेज एंड फॉर द यूनिवर्सिटी? नो सर। वजह क्या? आप कॉलेज में कौन सा स्ट्रक्चर रखोगे? सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर देखा डिपार्टमेंट बना देते, वो कॉलेज वाले नहीं बनाते डिपार्टमेंट उतने। वो कहते जी, यूनिवर्सिटी वाले कहते जी हमारे 60 डिपार्टमेंट का मतलब पता क्या है, वहाँ 60 चेयरमैन बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के और हर डिपार्टमेंट अपने अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन कॉलेज वाले नहीं करते ऐसा। वजह क्या है? कॉलेज रिलेटिवली इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स व्हाई देयर यू नीड अ सिंपल स्ट्रक्चर, यू नीड द डिपार्टमेंटल मीन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द यूनिवर्सिटी माय डियर।
और इसीलिए लास्ट टाइम हमने SBUs की बात की, मुझे बताइए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां सिर्फ एक प्रोडक्ट है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 10 किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाती है। अब मैं जानबूझ के लफ्ज पोर्टफोलियो इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि कल बात हुई थी। तो दे हैव द 10 पोर्टफोलियोज, 10 डिफरेंट प्रोडक्ट, 10 डिफरेंट बिजनेसेस। आप मुझे बताएं वहाँ डू यू थिंक आप वहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला जो वो स्ट्रक्चर रखोगे? नॉट एट ऑल। आपको डिवीजन बनाने पड़ेंगे, बीन SBUs। अब यहां से माय डियर एक रैशनैलिटी निकालिए। इसका मतलब है कि वंस द साइज ऑफ बिजनेस चेंज, स्ट्रक्चर नीड टू बी चेंज। ये है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स माय डियर। बाद में वही बताना चाह रहा था कि साइज के बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा। अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इवन इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी के चेंज होने से स्ट्रक्चर चेंज होता है। फिर इसी तरीके के साथ माय डियर आपका आज के जमाने में कंटेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं। मैनेजमेंट पढ़ी हुई है आप लोगों ने? यस सर। तो फिर आप लोगों को तो मुझे मैनेजमेंट नहीं आती बच्चों, जरा मुझे सिखाएं मैनेजमेंट क्या चीज होती है। अच्छा, उसमें ये बताइए कि जो आपके कंटेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? बाय द वे आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाई होगी आपके सरों ने, जो कराची के बड़े ब्रेनी किस्म के लोग होंगे, लाहौर वालों के बैठे हुए हैं ब्रेनी किस्म के लोग। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब इज इट क्लियर अजीम? द वॉइस इज क्लियर नाउ? अब क्लियर है सर। चलें, थैंक यू। अच्छा, तो आज डू यू लाइक टू टेल मी द कंटेम्परेरी स्ट्रक्चर, द मॉडर्न स्ट्रक्चर, द आई मीन लाइक जो इस वक्त मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं? सर कंटेम्परेरी में टॉप टू डाउन होगा, फ्लो ऑफ नहीं माय डियर, ये आप बड़ी इनिशियल सी बात कर देते हो। थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है। मैं तो समझता हूँ लाहौर वाले और कराची और इस्लामाबाद, मैं तो बड़ा डर रहा था कि ये तो लोग मुझे बोलने नहीं देंगे। असल में सर ये सब्जेक्ट थ्योरी का, तो इसमें जरा ना आप मैं फाइनेंस में भी आऊंगा इंशाल्लाह, उसमें भी कहेंगे ये थ्योरी है। बेटा जी, ये हमारे यहाँ जो ये सारी रटालाइजेशन करवाते हैं लोग, ठीक है? ऐसी है वो जिससे पूछो ना कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है, वो कहते हैं कैलकुलेट हम कर देंगे, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज दिस वन। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कंपाउंडिंग, कंपाउंड और कंपाउंड तो कहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग मेरा ख्याल नहीं है। यू विल बी एबल टू टेल मी व्हाट इज कंपाउंडिंग बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द इशू बेसिकली। ये भी एक मिथ है, प्लीज सुन लीजिएगा कि जी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। वो भाई हर न्यूमेरिक के पीछे थ्योरी होती है। थ्योरी शुड बी क्लियर फर्स्ट। अजीम बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। मैं तो जो बात वही कहनी है। मैं तो आई एम मेकिंग अवेयर टू कराची पीपल, टू लाहौर पीपल, टू इस्लामाबाद। दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू, please make a question. 100 million questions should be asked to Mr. Yasin Jamal. I will be there to respond to you people. Or whatever the area, whatever the topic, whatever the subjects is there, please you are supposed to talk me. लेकिन जाहिर बात है अभी I am supposed to talk with respect to the strategic management. मैंने इस पे बात करनी है. My question is, what is the contemporary? सुनिएगा, आज के जो contemporary structure सुन लें. Team structures, project structure, matrix structure, boundaryless organization, learning organization, network organization, virtual organization. My dear, ये मुझे आप लोगों से सुनना था, because you need to make a boundaryless organization. You need to make, आज ये boundaryless हो गया ना जी, कि मैं मुल्तान में हूँ, someone is in Karachi, someone is in Islamabad, someone is in Faisalabad, someone is in Lahore, but we are conducting the lectures. This is boundaries. Physical boundaries have been eliminated through the technology. रेडियो की तरह। किसकी तरह? रेडियो की तरह सर। नहीं, एग्जाम्पल मुनासिब नहीं है वैसे यहाँ पे। रेडियो की तरह क्या मतलब? रेडियो में भी ऑल पाकिस्तान पे कनेक्ट हो जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो एक और चीज है। नहीं, वो एक और चीज है मैं डियर। वर्चुअल एक आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड और चीज है ना, रेडियो तो और चीज है।
रेडियो में तो आप अब वहां पे आप एक बंदे को सुन रहे हैं, सबको तो नहीं सुनेंगे ना आप। एनी हाउ, ये है स्ट्रक्चर, दीज आर कंटेम्प्रोरी स्ट्रक्चर। मैं अब मुझे आई एम 100% श्योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसी को नहीं आता होगा। ऐसी है सर, मुझे नहीं आता। हाँ जी, थैंक यू। और बताएं अगर कोई, इफ एनीवन इज देयर टू शेयर लाइक व्हाट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड व्हाई दिस इज मेड, माय डियर। स्ट्रक्चर व्हिच इज मैट्रिक्स। जी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? ये उनको आता होगा जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। हाँ जी, गूगल कर लें। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एम्प्लॉयज के डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। सॉरी, ये अगर एम्प्लॉयज के डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं कि एक बंदा फंक्शन मैनेजर भी है और प्रोडक्ट मैनेजर भी है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा। चलें, बहरहाल एनी हाउ आप लोग इन चीज़ों को आज टाइम मिलेगा तो देखिएगा। बट एनी हाउ आई थिंक आज हम लेक्चर को एंड अप कर रहे हैं। तो स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी जी, रिक्वेस्ट ये थी कि ये स्लाइड्स काइंडली अगर आपके लिए पॉसिबल इजीली हो तो शेयर कर दिया करें पहले, ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकालें। हाँ, नहीं, तो काफी सारी चीजें आप बताते हैं और नोट आउट नहीं, वो आज पता क्या था, आई वॉज वेरी बिजी। मेरी एक जगह मैं ट्रेनिंग में कंडक्ट करता हूँ, तो मेरी आज एक ट्रेनिंग थी। अभी मेरी एक फ्राइडे को ट्रेनिंग खानेवाल में है। तो इनफैक्ट मैं ह्यूमन इश्यूज के ऊपर मैंने बोलना है वहाँ पे। अच्छा, उसके वो दैट वाज अ टू हेक्टिक वन, तो उस वजह से मैं आज लेट हो गया आप लोगों को बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सेंड यू ऑल मटेरियल ऑन राइट टाइम। जरा कोशिश करूंगा जितनी अर्ली हो सके। ठीक है जी, थैंक यू सर। ताकि वो प्रिंट आउट आप काफी सारी चीजें बताते हैं, फिर हम नोट डाउन उसी के ऊपर करेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे ये आप डॉक्यूमेंट शेयर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप है। आप अपना नंबर मुझे वो शेयर करें और मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज मेरी क्लास का पहला दिन है। यू आर फ्रॉम जी, आप कहाँ से हैं जी, किस स्टेशन से हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। लाहौर से। व्हाट इज गुड नेम प्लीज? सर आपके आवाज नहीं क्लियर हो रही जी। बहरहाल जी, व्हाट्सएप ग्रुप है और वो आप दोस्तों से भी ले सकते हैं। नंबर आवाज काट रही है, मुझे ठीक तरह ना समझ रही। सर अपना नंबर शेयर कर दें काइंडली। नेक्स्ट में क्वेश्चन कर दे तो आंसर सर लीक कर दें शायद। लो हेलो सर लीक कर गए शायद।